Hi everyone. I welcome you all to this series which is titled as Master One Concept at a Time. So this is gonna be a like one-stop series to learn new ideas in the simplest possible way. I will try my best to make it as simple as I can so that you will enjoy learning new things. And it's not like it's just for some kind of exams, it's just so that you can be a knowledgeable person about anything going around you. This series will basically cover concepts from all around, like various subjects and anything in the spectrum that I in my best capacity can include. So it's gonna be in English, so it will be a combo of both so that हर टाइप का इंसान इस सीरीज से कुछ सीख पाए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट टॉपिक and I have taken the topic straight from our Indian polity, and the topic in itself is very much of a reason that why our India is still a democracy. Okay, so this is what we are gonna start with. So before disclosing the topic, let's just imagine something. Okay, so imagine कीजिए like if you have built a solid house. आपने एक अच्छा खासा घर बनाया, ठीक है. So with time you are allowed to change the like अगर आपने मान लो एक घर बनाया, ठीक है. So with time you are allowed to change the paint, है ना. आप पेंट चेंज कर सकते हैं. You can like add a new door, add a new window. Okay, so you can do all these remodeling acts on the rooms or the house, है ना. But the question is, what if this is your foundation of the house? Okay, so this is the foundation on which your house is standing obviously. So what if अगर आप चाहें या कोई चाहे कि मुझे ये फाउंडेशन ही चेंज कर देना है, so what will happen? Obviously the whole house would collapse. Okay, so it is inevitable that the whole house would collapse, right? So this kind of illustration I am using to just help you connect with something that our topic is based upon. ठीक है. So this house and all is exactly how the Constitution of India works. Okay, so let's just delve into the topic. So the historical timeline is like when our constitution came into force in 1950. Obviously everyone knows this. Okay, so there is an article under the constitution, that is article 368 of Indian constitution, which gave the parliament of India the power to amend the constitution. But for now मैं expect कर सकता हूँ कि आप लोगों ने इतना बेसिक पढ़ा होगा, आपको पता होगा संविधान क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी में एक, जैसा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं ना, पार्ट्स, शेड्यूल्स, प्रोविजंस, है ना, प्रोविजियो या फिर आपका आर्टिकल्स. तो मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 368 की, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है दैट हमारी जो संसद, पार्लियामेंट, दैट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंड मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना, इसको मॉडिफाई करना. अच्छा, ये नीड क्या है इसको चेंज करने की? ऑब्वियसली दैट टाइम के साथ क्या होता है, लोगों की नीड्स बदलती हैं, वैसे ही हमारे देश की नीड्स बदलेंगी. तो कैसे नीड्स बदलेंगी, क्या बदलेंगी, ये सब एक तरह से बुकिश नॉलेज ना हो कि एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है. लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी लाइक, अगर वो पहले जैसे 1950 में जैसा कॉन्स्टिट्यूशन था अगर वैसा ही हो तो सोचो 2025 में उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वैल्यू रहेगा करंट सिनेरियो में. अगर हमें कुछ और नीड होती है, लाइक सर्टन टाइप ऑफ राइट्स लाने हैं, कुछ टाइप ऑफ राइट्स हमें रिमूव करने हैं, अदरवाइज हम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल जस्ट बिकम अ काइंड ऑफ फॉसिल डॉक्यूमेंट. सो दैट्स द नीड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. अब देखिए 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था
उसके आर्टिकल 368 में द पार्लियामेंट इज गिवन द पावर टू अमेंड इट. सो इट साउंड्स कूल, ओके, बट द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज, imagine what if the parliament starts changing arbitrarily anything in the constitution for their own like benefit, if it's for the political party or something like that. मतलब ये बेसिक चीज़ आप समझ सकते हैं कि पार्टी अपने बेनिफिट के लिए अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना स्टार्ट कर दे तो लाइक मान लो पार्लियामेंट आपका, क्योंकि मेजॉरिटी पे वर्क करता है ये सारी चीज़ें, आपका डेमोक्रेटिक मैंडेट पे वर्क करता है, लाइक द पीपल हु सपोर्ट एनी पार्टी आर प्रोवाइडिंग द डेमोक्रेटिक मैंडेट टू दैट पार्टी टू गवर्न अस, to rule us, okay. Rule would be some kind of like arbitrary term, but that's okay, we are gonna just keep it to the basic. So like, so what if the parliament out of nowhere like सब कुछ चेंज करना शुरू कर दे, अगर डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, या मान लो उसके लिए सबसे पहला एक्ट कर दे कि आपके जो फंडामेंटल राइट, या हिंदी में मैं बोलूँ अगर मौलिक अधिकार है उनको ही हटाना शुरू कर दे, फिर सो विल इट स्टिल बी आर इंडिया? क्या हमारा जो लोकतांत्रिक भारत है क्या वो भारत ही रहेगा? सो दैट्स वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन कम्स इन, ठीक है. तो आवर टॉपिक इज डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. Pardon my handwriting because I am adjusting with some text setup, like writing on my phone screen to like try to get the screen recording and all, and I am doing it with my fingers only, so it may be problematic, but with time I will change this thing with some pen, tablet or something like that. So for now I will just like request you all watching this video that just focus on the words that I am trying to like make you listen, है ना. That will be sufficient for you all to understand this concept. So ठीक है. अब फिर से मैं अगर टाइमलाइन पे जाऊँ, आपने 1950 की बात की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, उसके बाद आपका उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक 368 है, जो 368 आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन करने की, ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकती है? लाइक कुछ भी, लाइक राइट्स हटा दे, है ना. कल को पार्लियामेंट बोल दे कि आपके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं है, या आपके पास मतलब क्रिमिनल जस्टिस राइट्स नहीं है, या कुछ भी ऐसा करना शुरू कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? दैट वाज आवर क्वेश्चन. सो द हिस्टोरिकल टाइमलाइन स्टार्ट्स विद 1950 एंड देन वी मूव टू 1967. 1967 में देयर वाज अ केस, गोलकनाथ केस, है ना. मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या वर्सेस स्टेट ऑफ समथिंग लाइक दैट. आप सिंपली सिर्फ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर जिसे एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है तो दैट इज़ सम अदर वैसे तो वहाँ भी ये काम आ जाएगा, बट डिटेलिंग में वैसे ही बुक्स में पढ़ते हैं लोग. आपको अगर मैं ऐसे नॉर्मल इंसान के लिए भी जिसको ये सब चीज़ें समझनी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ था? अब गोलकनाथ केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. सारी बात यहाँ पे मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही होगी. किसी से कुछ छीन लिया जाएगा, किसी में कुछ चेंज कर दिया जाएगा, जिस वजह से इंसान को लगेगा कि उसके पास कुछ रहा नहीं है, उसके लिए वो कोर्ट में जाएगा. अब कोर्ट में जाएगा, डिपेंड करेगा, स्टेट हाई कोर्ट जाए आपका, फिर उससे अपेलेट में आपका अपील करके, अगर वहाँ पे उसको अच्छा मतलब फेवरेबल ना लगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है. तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ, उसमें क्या बोला 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने, दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती. दैट वाज द प्रोविजन और दैट वाज द लाइक एस्टेब्लिश्ड थिंग इन दिस केस, ओके. सो नाउ मूव ऑन टू 1971. अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके, ठीक है. आपके पास पावर है 368 में, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप मौलिक अधिकार चेंज करना शुरू कर दें. किस केस में बोला था? गोलकनाथ केस में, ठीक है, याद रखिए. अब 1971 की जब मैं बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, अब पार्लियामेंट सोचेगी, मतलब
पॉलिटिकल पार्टीज जो भी मेजॉरिटी कुछ भी, वो सोचेंगे कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत कि हमें रोक रहे हैं हमारे उन एक्ट से या उन एक्शंस के लिए जो हम चाहते हैं, बीइंग द मेजॉरिटी पार्टी या बीइंग द प्रिविलेज्ड पार्टी टू हैव अ डेमोक्रेटिक मैंडेट। ठीक है, सो इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया 1971 में, फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ दिस केस पार्लियामेंट इन 1971 पास्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 24, ये आपके काम की चीज़ नहीं है 24th, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ फॉर फैंसीइंग दिस थिंग विद फैक्ट्स, है ना। सो इसमें क्या कहा, इस एक्ट में पार्लियामेंट ने कहा दैट यस पार्लियामेंट कैन ऑल्सो अमेंड any part of the constitution even if it is fundamental right, that is part 3 of the constitution, है ना। part 3 part 4 ये सब भी इस वीडियो की बातें नहीं है, आई होप आपको इतना बेसिक पता होगा। सो इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक साइड, पार्लियामेंट एक साइड। ठीक है, 1967 1971 इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इस बैटल को जीतने के लिए एक नया अमेंडमेंट लाया जिसमें उन्होंने मतलब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जनरली यही होता था पहले, आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है। पहले क्या होता था, यही होता था, सुप्रीम कोर्ट किसी केस में आपका पार्लियामेंट के किसी एक्ट को इनवैलिडेट कर दे और पार्लियामेंट उसको सपोर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले आए। वो अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट में पास होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। तो इसीलिए ये बैटल चलती थी, है ना, कि वहाँ से केस में कुछ इनवैलिडेट कर दो, यहाँ से नया लॉ बना दो, है ना, मेजॉरिटी से। तो फिर क्या होता था, ये बैटल चलती रहेगी, फिर ये लॉ को इनवैलिडेट करेंगे, फिर वो उस लॉ को इनवैलिडेट करने की पावर को रोकने के लिए एक और लॉ पास करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो हम थे 1971 में, तो दिस सेट द स्टेज फॉर द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल एवर, है ना। सो देन वी मूव ऑन टू 1973, है ना। अब हर वो इंसान जिसने बेसिक पॉलिटी पढ़ी उसने ये केस पढ़ा होता है, द केम द लेजेंडरी केस विच इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए ये केस किस पे बेस्ड था, किस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का क्या था, क्या लैंड एक्विजिशन, क्या ये सब बात की बात है। आप सिंपली ये सोचिए केस था, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केशवानंदा भारती, है ना। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में 13 जज बेंच ने सुना था, जिसमें, और ये भी याद रखने की बात है, दिस वाज द लार्जेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन इंडियन हिस्ट्री, है ना। सो द वर्डिक्ट फॉर दिस केस from Supreme Court was that yes, Parliament can amend the Constitution, ठीक है, but it cannot touch basic structure. It cannot touch basic structure. This is the important thing. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वो अब हम समझेंगे व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर। आप ऐसे सोचिए, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जैसे आप ब्लूप्रिंट रहा होगा, ब्लूप्रिंट मतलब कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से फ़ायदा क्या होगा, वो चीज़ें कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होंगी तो लोगों का भला होगा, देश हमारा लोकतांत्रिक रहेगा। तो पर अगर इन्हीं को हटा दे पार्लियामेंट तो देश में क्या ये सब कुछ नहीं होगा ना। इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जिस फॉर्म और जिस इंटेंट से बना था 1950 में इनेक्ट हुआ था, वो इंटेंट वो सब चीज़ें आप चेंज ना करें। लाइक अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था लोगों का भला करने के लिए, उसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न है जिससे हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक रह रहा है, तो आप उन चीज़ों को नहीं हटा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो ये कहीं रिटर्न नहीं है वर्ड फॉर वर्ड कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है,
जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केस बाय केस बेसिस पे चीज़ें इंटरप्रेट करके आपका बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करता है। देखिए तो होता क्या है, तो ओवर टाइम आ सुप्रीम कोर्ट एडेड फ्यू कोर पिलर्स, है ना, कोर पिलर्स या कोर थिंग्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर। लाइक सबसे पहला सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे सुप्रीम है, कोई भी नया लॉ बने कुछ भी बने वो उससे भी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमेशा। दूसरा रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ एक बहुत, अगर मैं इस पे बात करना चाहूँ तो इट विल बी काइंड ऑफ अ फिलोसॉफिकल सेशन जो इन itself will be very long than this video. So कहीं ना कहीं अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ, बाद में obviously we are gonna discuss it in separate sessions. Third is separation of power. Next is judicial review. The power of the judiciary to review any enactment, any legislation that is enacted by the legislators, है ना. Next is your फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है ये भी आपको पता है, ये फेडरलिज्म दैट सेंटर स्टेट रिलेशन ये वो, है ना. सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इंडिया, ये भी एक फिलोसफिकल अप्रोच है, क्या इंडिया प्योरली सेक्युलर है. नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेसी एंड नेक्स्ट इज योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो ये सब आपका बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि दीज वर द काइंड ऑफ कोर पिलर्स. अब देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केशवानंदा भारती केस में जो डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रीन क्या होता है, मतलब डॉक्ट्रीन मतलब सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल ना, रूल का एक फॉर्मल टर्म डॉक्ट्रीन मतलब क्या होता है ना. तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रीन है जो फॉलो किया जाता है दैट इज दैट आपका जो घर है, संविधान को एक घर मान लो, है ना, संविधान को एक घर मानो. इसकी ये जो फाउंडेशन है कि संविधान का अस्तित्व इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मौलिक अधिकार तो होने ही चाहिए, और सेक्युलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट के पास पावर. अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है आपका जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है उनको रिव्यू करने की, तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर तो पार्लियामेंट कल को कोई भी लॉ बना देगी, है ना. तो ये सब चीज़ें हैं. उसके बाद आपका डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया. तो ये सारे पिलर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फाउंडेशन है तो पार्लियामेंट चाहे तो विंडो चेंज कर सकती है, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है नीड के हिसाब से, लेकिन इनको नहीं छेड़ सकती. जो ये सब चीज़ें हैं इनको पार्लियामेंट आर्बिट्रली नहीं, इनको तोड़ नहीं सकती, फाउंडेशन नहीं तोड़ सकती. लाइक अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये घर है, फाउंडेशन है, ये इसके पिलर्स थे, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, तो इसको नहीं, ऐसे नहीं इस पर बुलडोजर चला दें, है ना, तो फिर तो पूरा घर कोलैप्स हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा. तो इसीलिए ये बेसिक चीज़ें जिनको चेंज नहीं कर सकती. दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना. सो आई एम गोना कंक्लूड इट विद लाइक दिस वन कॉन्सेप्ट literally saved our Indian democracy during the emergency period of 70s and still doing the same thing, है ना. Without it the constitution could have just used as a tool for political power, क्योंकि सरकार चाहे उस तरह से आपके अधिकार छीन ले, कुछ कर दे, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ले, फेडरलिज्म में आपका सेंटर को ज़्यादा पावर दे, स्टेट से पावर छीन ले, फिर आप सोचो कि आपका स्टेट क्या कर पाएगा अगर सब कुछ सेंटर से ही चलेगा तो, है ना. आपका डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें, रूल ऑफ लॉ क्या होता है वो बात की बात है, बट अगर इसको ही ख़त्म कर दें फिर क्या फ़ायदा. आप चले जा रहे हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपको सीधे उठा लिया पुलिस ने, है ना, सीधे आप पे कोई भी चार्ज लगा दिया विदाउट एनी एविडेंस, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, ये सब रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है. या मान लो सरकार का कोई खास है, उसको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, आप जस्ट बिकॉज आपका कोई कंटेक्ट नहीं है तो आपको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है. दिस इज़ ऑल समथिंग दैट सरकार क्या मतलब पॉलिटिकल पावर कोई भी इस तरह से इसको यूज़ कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया अमेंडमेंट ले आओ, ये कर दो, एक नया अमेंडमेंट ले आओ, लैंड छीन लो, एक नया अमेंडमेंट ले आओ, आप लोगों का सांस लेना बंद करवा दो. मतलब आई एम जस्ट मेकिंग इट फनी बट दैट्स हाउ इट इज़, है ना. सो आई एम गोना से दैट्स वाई I will say that the basic structure doctrine, the doctrine of basic structure is not just a legal theory, it is indeed the spine of Indian democracy. Okay,
So this was all for this स्मॉल सेशन ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. थोड़ा सा मैंने इसमें फैक्चुअल जो आइडिया दिया था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, है ना. सो आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो राइट हियर इटसेल्फ, है ना. सो इन द एंड आई एम जस्ट गोना से दैट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more such concepts, more such videos on such powerful concepts. So this was our master one concept at a time series, ठीक है, from polity. So see you in the next video. Thank you so much.